So hello everyone, welcome back to my channel. This is a daily tarot reading for everyone. So this time we are doing it a bit differently. You can choose the pile based on the thumbnail, and I will also give the timestamps in the description as well. So we will begin with pile number 1. What messages you need to get for the entire day. Let's draw the cards first and then we will analyze the details for you as well. So pile number 1, today you might be offered some partnership. आपके काम के रिगार्डिंग भी हो सकता है, कोई जो पॉसिबल लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, बट देयर विल बी सम ऑफरिंग ऑफ पार्टनरशिप. अब वो किस एस्पेक्ट को लेके होगा, दैट इज यू विल हैव टू लुक फॉर, बट बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज. वो जिस भी रिगार्ड में आए लाइफ में, वो आपको थोड़े पॉजिटिव माइंडसेट से आपको उस अप्रोच उस अपॉर्चुनिटी को आपको देखना है. पार्टनरशिप का जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा आज के दिन में, और इन जनरल भी है ना, आपका दिन आज अच्छा जाएगा इन एवरी एस्पेक्ट. अब पैसे को लेके भी आज के दिन आपको कोई इशू होनी नहीं चाहिए. अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह मूव करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कोई नया प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, आज के दिन में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है और आप इस पर कुछ एक्शन भी आज ले सकते हो, और आपको आज लेना भी चाहिए, क्योंकि आज का दिन आपके हर एस्पेक्ट में लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको आज पॉजिटिविटी दिखने को मिलेगी. तो आप जितना उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, आप उतना आपको यू शुड डू इट. और जो आपका पिछला जो हार्डवर्क था ना, द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन, आज आपको उसका रिवॉर्ड, यू विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ योर प्रीवियस हार्डवर्क्स टुडे, एंड यू विल आल्सो गेट अ लॉट ऑफ chances, opportunity to showcase your talent in front of others. So if you get a chance to showcase your talents, definitely go for it. You never know what is near the corner. कि कोई आपको कोई मौका मिल जाए जो आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. मन आप चाहते हो कोई ब्रेक, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से आपको वो मिले. तो डेफिनेटली गो फॉर इट. इफ यू गेट एनी चांस ऑफ शोकेसिंग योर स्किल्स, देन डू इट. एंड देयर विल बी आई बिलीव इफ यू डू इट ना, then there will be some partnerships that will be offered to you, and the entire day is going to be very auspicious for you. So this was the reading for pile number 1, and we will move forward to pile number 2. So pile number 2, let's see what cards we have for you. So pile number 2, today you might be feeling a bit emotional lately, and you might want to take a break from your work. काम से थोड़ा आप छुट्टी लेके तो नेचर में बैठना या पार्क में जाना, गोइंग फॉर अ वॉक, और कुछ जो एग्जिस्टिंग आपके रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, ऑल्सो फ्रेंडशिप, फैमिली, रोमांटिक रिलेशनशिप, उनके साथ जो एग्जिस्टिंग है ना, उनके साथ आप कोशिश करोगे. हो सकता है कि आपके मन में ऐसा हो दैट टुडे यू वांट टू spend more time emotionally with the existing relationships that you have with other people, rather than investing your time into any new love relationship or new friendships. Even though there is a possibility of a new friend coming into your circle, but I see that you will be a bit emotional today. So if you get any chance to take some time off from your work and your usual routine, please do so and give yourself a little break. So money wise, this day will be, I would say, 50-50. So I mean to say, you will have enough money to be to take care of your expenses and your needs. But I believe the cards are saying that आप ऐसा करो, आपको ऐसा लगेगा कि जो पैसा आपने कमाया है, जितना आपके पास है, that is sufficient indeed. But आप ऐसा सोचोगे that you will try to hold on to the amount of money that you have right now, क्योंकि आपको you are thinking that after so much of hard work you have earned that much of money, and you cannot waste that money on trivial stuff, unnecessary stuff. So वो एक तरह से अच्छा भी है. Just hold on to your wealth and spend it accordingly and very cautiously, because पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, खर्चा करना बहुत आसान होता है. So I don't see any negativity in that. So as I was saying in the beginning कि आज आपका मन करेगा, you will feel emotional, and अंदर से भी from deep down as well, you want to walk away from the situations that are not serving you anymore, the situations that are emotionally very draining to you. You might want to walk away from them, and in very rightly so, you should do that, because जितना आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर जो वो बेकार रिलेशनशिप्स है दैट आर नॉट सर्विंग यू एनी पर्पस, इफ यू वॉक अवे फ्रॉम दैट दोज रिलेशनशिप्स, बी इट फ्रेंडशिप्स, बी इट
फैमिली मेंबर्स, बी इट रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर आप उन सबसे वॉकआउट कर जाओगे ना तो आपके लिए ही वो बेहतर होगा, आपके इमोशनल वेलबींग के लिए भी और आपके मेंटल वेलबींग के लिए भी। तो हाँ, ये आज के दिन आपके अंदर ये एनर्जी रहेगा कि मैं इन सबसे थोड़ा दूर चले जाऊं, थोड़ा अकेले में एकांत में रहूं, टू गेट सम टाइम अलोन, तो डेफिनेटली डू दैट एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड योर मनी कॉशियसली। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी रेकलेसनेस आ भी जाता है ना पैसे को लेके, तो आप ये मैसेज ध्यान रखना कि आपको पैसे फालतू में खर्चा नहीं करना है, आपको पैसे सोच समझ के खर्चा करना है। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 एंड वी विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3 देखते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा जाएगा। So just like pile number 2, if you have time and energy, please go ahead and watch pile number 2 as well, because the energies are more or less similar, because you are also going to feel a bit of vulnerability throughout the day. You are going to be feeling emotionally vulnerable to others. So this is a very dangerous situation, because वैसे कहने के लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बट आई डू बिलीव दैट इमोशनल वल्नरेबिलिटी इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग टू हैव, बिकॉज ईच एंड एवरी इडियट अराउंड यू will take advantage of you even if they get any hint of your vulnerability. और आज के दिन आप में थोड़ा है ना इल्यूशन रह सकता है, कुछ मतलब क्राइसिस ऑफ फेथ आपके अंदर रह सकता है एज टू के आपका जो बिलीफ सिस्टम था, आज आपको लगेगा कि द थिंग्स दैट आई हैव बीन बिलीविंग इन फॉर सो लॉन्ग, आर दे रियली वर्थ इट और नॉट। उन विचारधाराओं को मैं लेके अब करूँ क्या, उससे तो मेरा कुछ हो नहीं रहा, ऐसे आपके अंदर थॉट्स आ सकते हैं। क्राइसिस ऑफ फेथ विल बी देयर, आप ऐसा फील कर सकते हो, एंड यू आर गोइंग टू बी इमोशनली वल्नरेबल टुडे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं होती। और अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग है भी, तो वो try your best not to express that in front of others. Try to make sure that no one else gets to आप किसी और को थोड़ा सा भी भनक ना लगे कि आप इमोशनली थोड़ा अभी अनस्टेबल हो, आपके अंदर एक तूफान चल रहा है, किसी को पता मत चलने दो उस चीज को। और अगर आप आज के दिन है ना किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर एक नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो दिस डे इज गोइंग टू बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर अ न्यू बिगिनिंग। जो आपका है ना द प्रोजेक्ट्स दैट यू वांट टू स्टार्ट, दिस इज द डे टू टेक द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज अगर आज के दिन आप शुरू करते हैं तो इन द नियर फ्यूचर यू विल योर प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू कम टू फ्रूइशन। आपको वो फुलफिल होता दिखेगा। जो आपके प्रोजेक्ट्स आज आप शुरू करोगे तो वो आपको आगे चल के उनका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अगर आज के दिन यू गेट इनफ टाइम, तो बी अ बिट स्पिरिचुअल, क्योंकि आप इमोशनली ऑलरेडी वर्नरेबल हो, तो काम से और इन सब से अगर थोड़ा आप टाइम निकाल सकते हो तो निकाल के आप थोड़ा मेडिटेट करो, स्पेंड सम टाइम अलोन। स्पिरिचुअली आपको आज ग्रोथ करने में मौका मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आज आप ध्यान करने की कोशिश करते हो, आज अगर आप मेडिटेट करने की कोशिश करते हो, आपका मन लगेगा उसमें, आपको फोर्सफुली बैठने की, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समवन इज मेकिंग यू सिट देयर फोर्सफुली एंड डू मेडिटेट, ऐसा नहीं फील होगा आज आपको। अगर आप आज मेडिटेट करने की कोशिश करोगे, आपका मन लग जाएगा उसमें, और जब आप वो करोगे आपको थोड़े अंदर से शांति भी महसूस होगी। और थ्रू आउट द डे यू माइट ऑल्सो गेट सम, आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी इन द फाइनेंसेस। आज का दिन आपका ठीक ठाक ही जाएगा पैसे के मामले में। और इफ यू अगर आपके फैमिली वगैरह से रिश्ते कुछ टाइम से ज्यादा अच्छे थे नहीं, आप सही से उनके साथ आपकी बॉन्डिंग वो नहीं हो रही थी, उठना बैठना नहीं था, तो यू माइट ऑल्सो गेट सम चांस टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स एंड रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम्स दैट यू प्रीवियसली हैड। तो ओवरऑल आपका सराउंडिंग अच्छा है, आपके जॉब के लिए भी आज का दिन अच्छा है। द ओनली फैक्टर दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन इज योर सेल्फ, इज योर इनर वेलबींग, क्योंकि इमोशनली आप थोड़ा अभी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी फाइनेंशियली एंड फैमिली के अराउंड चीजें बेहतर होंगी और आज का दिन आपका अच्छा ही जाएगा। 70 to 80% तो आपका दिन आज अच्छा है, बाकी थोड़ा सा वो है, वो तो चलते रहता है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। डू लेट मी नो हाउ इट रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।